So, good morning, friends. Today we will be talking about the Newton's third law of motion. So, what is this? This is Newton's third law of motion. So by now we have understood what is the first law of motion. First law of Newton's says that there is a law of inertia which exists, that if any body is at rest, so it will try to remain at rest, or if it is moving in a straight line path with a uniform velocity, if it will keep on moving with the same velocity until and unless there is no unbalanced force over it. Until and unless there is no unbalanced force over it. That was the first law. Second law says that the rate of change of momentum on any body is proportional to the force applied over it. Yeah, rather unbalanced force applied over it. Okay. So, and the F is equal to ma is being derived from that only. Now we will be going towards the third law. So third law says that for every action there is equal and opposite reaction. If you have applied any force over any other object, so that object will also exert a force on you which will be same into the quantity but opposite into the direction. Which will be same into the quantity but opposite into the direction. Let us try to understand the third law of motion. It is very important. Okay. So it goes like this. Let's say that there is a block. It is lying on a frictionless surface. What? क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन मान लेंगे, if we will assume that there is some friction, then there will be one more external force which will come into the picture. तो हम अभी मान लें कि चिकनी सतह है, इस पे एक ब्लॉक है, ठीक है. अब एक साहब आए और इनका मन क्या किया कि इस ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे. इन्होंने अपने हाथ से एक फोर्स लगा दिया. क्या फोर्स लगा दिया? जरा से 5 न्यूटन का फोर्स. क्या लगा दिया? This man is Virat. He is a very popular man in Indian cricket and very popular in our physics subject also. Number of times we keep on talking about it. So this block was lying at rest. Okay, this block was lying at rest at this table, which is a frictionless surface. Frictionless surface हमने इसलिए ली है कि we will not consider any force between this and this surface, the surface of the block and surface of the table. ठीक है सर, ये एक टेबल है. टेबल है, सरफेस है, जो मान लो जो आपको ठीक लगे. अब विराट साहब आए and he did not like this block being positioned there. उनके मन में आया कि इसको धक्का लगाते हैं. इन्होंने क्या किया? With a force of 5 Newton he pushed it. What did he do? With the force of 5 Newton he pushed it. और ये यहाँ पे चला. डिस्प्लेस होकर यहाँ चला गया. डी डिस्टेंस.
कोई रेलिवेंस नहीं है इस चीज का। और कोई पूछे आपसे कि व्हाट विल बी द फोर्स applied by the block on Virat. Virat has applied 5 newtons of force. Let us say this is the direction. Let us say this is east. Let us say this is east. फोर्स है ना भाई, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यू नीड क्वांटिटी, you need magnitude as well as the direction to depict force. Okay. So somebody said that Virat applied 5 Newton of force on this block A in the east direction. What will be the force applied by the block on Virat? What will be the force applied by ये ब्लॉक विराट पे कितना फोर्स लगाएगा? So न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ हमें याद आ गया भाई। वो क्या कहता है? वो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। अगर आपने किसी को कोई फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाया है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, ये तमाचे की तरह है। तूने मुझे मारा, मैं भी तेरे को मारूंगा, ठीक है? उल्टी डायरेक्शन में तूने मुझे इधर मारा, मैं तेरे को उधर मारूंगा, उतने ही ताकत से, ठीक है? तो ये ब्लॉक भी विराट पे कितना फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? किस डायरेक्शन में लगाएगा? ठीक उल्टा। अगर ये ईस्ट है तो वो वेस्ट, तो कितना लगेगा? ये विराट पे कितना फोर्स लग जाएगा भाई? ये भी लगाएगा 5 न्यूटन। किधर लगाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में लगाएगा। किधर लगाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में लगाएगा। तो फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगा है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा एक बात और ध्यान देनी होगी, ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है ये इसके नहीं लग रहा है। प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज्ड दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स व्हिच विराट अप्लाइड विल बी कैंसिल्ड। नो, विराट ने जो फोर्स लगाया किस पे लगाया? ब्लॉक ए पे लगाया। विराट ने ब्लॉक ए पे कितना लगाया? 5 न्यूटन। फिर ब्लॉक ए ने विराट पे क्या लगाया? 5 न्यूटन। किधर? उल्टी डायरेक्शन में। किधर? उल्टी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ इस तरीके से कहता है। तो हम जरा सा इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। आ जाओ भाई, हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की। ठीक है। आप सभी ने बंदूक देखी होगी, गोली मारी जाती है ना, मान लीजिए मैंने अच्छी भली ना बनाई हो ये राइफल, यहाँ पे गोली होती है, ये समझ गए? That is the bullet is here. ये bullet। अब हम एक काम करते हैं, इनके वजन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो पूरी राइफल है इसका वजन है let's say 3 kg, ठीक, और इसका वजन है 10 ग्राम इक्वल टू 0.01 kg, ठीक है। ये यहां पे रेस्ट में होती है इनिशियली
bullet is at rest. इनिशियली क्या होती है, बुलेट यहाँ पे रेस्ट पे होती है. आप क्या करते हैं, अचानक से आप यूं रखते हैं ना, यूं है ना, आप अचानक से यहाँ से ट्रिगर दबाते हैं. आपने ये ट्रिगर दबाया और इस पे अचानक से आपकी फोर्स लगता है, कोई भी फोर्स, जैसे there is a force F. भाई ये रेस्ट से कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पकड़ लेती है. बहुत ही भारी फोर्स लगता होगा ना, कोई बहुत ही भारी फोर्स लगता है, ठीक है. तो मैंने मान लिया कि साहब ये 50 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर आके लगा है. देखिए जो F है ये क्या है, ये क्या है, 50 न्यूटन का फोर्स है. क्या है, 50 न्यूटन का फोर्स है. तो अब आप जरा सा एक छोटी सी बात देखिए कि ये जो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑन द बुलेट, क्या होता है, F is equal to m into a. So a is what, F divided by m. 50 divided by 0.01. Okay. So 5,000 meter per second. This kind of acceleration this bullet will get for this force, by this force. And अगर हम acceleration, अच्छा पहली बात तो ये हो गई, हमने ये बोल दिया कि इसने, किसने, राइफल applied 50 Newton on what, बुलेट. ठीक है भाई. तो क्या बुलेट छोड़ दे, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, what will happen, this bullet will also apply the same force over it. ये बुलेट भी इसके ऊपर कितना लगाएगी, 50 न्यूटन. लेकिन किधर की, अगर बुलेट इधर जा रही है तो वो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा. तो अगर मैं ये कहूं कि एक्सेलरेशन ऑफ द राइफल क्या होगा, राइफल का वेट क्या है, 3 kg. फोर्स कितना लगा, 50 divided by 3, 16.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना अंतर है. उसको जो एक्सेलरेशन मिला वो मिला 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, 16. मतलब अलग अलग इंपैक्ट होंगे. अच्छा एक और मजेदार बात है, आपने यूं लगाया था ना, यहां रखते हो आप राइफल, क्यों बोलते हैं कंधे मजबूत होने चाहिए वरना कंधा टूट जाएगा. ठीक उतना फोर्स 50 न्यूटन का पीछे लगा. अच्छा गोली तो बहुत तेज आगे चली गई until there is no objection, लेकिन एक कंधा उतना पीछे क्यों नहीं गया, क्योंकि अब 50 न्यूटन अब किस पे लगा, अब 50 न्यूटन का धक्का किस पे आके लगा, इस बॉडी पे. और इसका वजन कितना है, इसका वजन में भी 80 kg है. तो 10 ग्राम से 3 kg पे और 3 kg से किस पे, किस पे, 50 kg पे. कोई इतना बड़ा इंपैक्ट आपको महसूस नहीं, क्योंकि आपका वेट ज्यादा है. लेकिन उसको, उस बुलेट को तो ऐसी वेलोसिटी मिली कि बस उसने जाके एक दीवार छेद दी. ओके. सो जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं या जब आप राइफल से भी, रिवॉल्वर से भी यूं मारते हैं, तो आप देखते हैं कि ये हाथ में झटका लगता है, हाथ में झटका लगता है. दैट इज द रिएक्शन फोर्स applied on the revolver
बाई दी बुलेट, बुलेट ने कितना लगाया 50 न्यूटन, लेकिन पीछे की तरफ. So this is an example